Okay, we have developed the rho A Cp dH over dt equation. Now we will divide the whole equation by density and we will result in A Cp dH over dt is equal to rho Fi Cp Ti minus rho F Cp T. Density will be cancelled out plus Q over density. Now dividing whole equation by another constant, that is the Cp, it will be equal to dH T over dt is equal to Fi Ti minus Ft plus Q over rho Cp. Area of constriction will remain here. Now by the derivative rules applied on two time dependent variables, we can apply the derivative and take the other as a constant out, h into d over dt plus now the derivative applied on the second variable, first variable to second variable, that is the height, and we will take the temperature out as constant, dH over dt. So Fi Ti, this last equation will remain the same, Q over rho Cp. Now Ah d over dt plus temperature constant out A over dH over dt, and the left side will remains the same, rho Cp. Now you are familiar with this equation. Yes, you have already developed this equation in the mass balance, that is A dH over dt is equal to Fi minus F. So you can write the equation over here. So I am writing here A dH over dt, temperature T over here, plus AH d over dt, and the left side remain the same. Now here I will insert the previous equation, that is Fi minus F naught. F out, sorry. So outside there will be a temperature, so Ah d over dt, and the left side equation remains the same. So opening this bracket, we have Fi t minus Ft plus Ah d over dt is equal to Fi Ti minus F and T plus Q over rho Cp. Now you can see that this minus Ft and this minus Ft, both quantities are shown, so they can be easily cancel out, and we can take this equation, this part over here, keeping only the derivative side on the left. So it will be Ah d over dt is equal to Fi Ti, ये यहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, Fi t plus Q over rho Cp. So only we can take the flow rate out from here, so it will be Ah t over dt is equal to Fi Ti minus T plus Q rho Cp. Now this is the mathematical model equation for energy, and it needs a lot of practice. आपको बहुत ज़्यादा practice करनी होगी. Now analyze this equation. Ah d over dt is equal to Fi T I minus T plus Q over rho Cp.
अच्छा, now let's see if Ti increases, what happens? The T will increase because Ti is its input temperature. Now if Fi increases, what will happen? The temperature will go down because now it will be more flow rate and more mass in the liquid, so the Q is the heated water is the same, so उसमें जब और पानी आएगा तो उसको टेम्परेचर को डाउन कर देगा. ना अगर आप फ्लो रेट को डिक्रीज कर दें, टेम्परेचर गोज डाउन. द सेम वे दे इफ इनलेट टेम्परेचर गोज डाउन, द टेम्परेचर the system will also goes down. Okay, what about the heat input Q by the steam? If the heat input increases, the temperature will rise, and the heat input decreases, the temperature goes down. Now you can see these mathematical models are basically the input and output models that makes effect that from which we can see the effect of different inputs on the output. अब आउटपुट आपके पास एक ही है टी, लेकिन इनपुट्स टी आई एफ आई क्यू आप सबके इसके ऊपर इफेक्ट्स निकाल सकते हैं. अच्छा, इसके अलावा मैथमेटिकल मॉडल्स इक्वेशंस के अलावा कुछ एडिशनल इक्वेशंस होती हैं. एडिशनल इक्वेशंस दैट हेल्प्स टू सॉल्व द मैथमेटिकल मॉडल इक्वेशन. अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, ट्रांसपोर्ट रेट इक्वेशन, ये शायद आपने टीपी में ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में पढ़ा हो. ट्रांसपोर्ट रेट इक्वेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट? मास, एनर्जी, एक्स्ट्रा. अगर हम एनर्जी की बात करें, सो हीट सप्लाइड बाय हीटर Q can be related with this U, area of the heat transfer into temperature T, steam minus T. So ये आपने, this is the basic equation in the heat transfer course. This is the heat supplied. तो आप इस Q इक्वेशन को मज़ीद इससे ऐड कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट कर सकते हैं. अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक और ट्रांसपोर्ट रेट इक्वेशन है, डेट इज़ द रिएक्शन रेट. उसमें भी आपके पास मास ट्रांसपोर्ट होता है, डेट इज़ R इज इक्वल टू K नॉट E रेज़्ड टू माइनस E over RT into concentration. Means rate of reaction is equal to K naught into exponential minus E over RT. एक्टिवेशन एनर्जी है ये वाली चीज़, और दिस इज योर कंसंट्रेशन. तो अगर आपके पास प्रीवियसली इक्वेशंस हों तो आप इन, अगर आपके पास जो सिस्टम है रिएक्टिंग हो तो आप ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें मैंने स्लाइड्स में एक एग्जांपल ऐड किया है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन यूज़ हुआ है. आप उससे जस्ट गो थ्रू आ जाएं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए आपको कंप्यूटर सिमुलेशंस चाहिए. ये तो हो गई सिंपल. इसके अलावा भी और एडिशनल इक्वेशंस है, प्रेजेंटेशन में है, आप उसको देख लीजिएगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ होगी आपके पास यहाँ पर, दैट इज़ द डेड टाइम. डेड टाइम इज़ दैट टाइम
a short interval in which effect of input is not observed on output variable. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और आपके पास एक पाइप है और स्पेसिफिक लेंथ एल। अब यहाँ पर आपने क्या किया, एक फ्लो रेट दिया एफ आई। फॉर ए शॉर्ट टाइम आपको यहाँ पे कोई फ्लो रेट आउट नहीं मिलेगा, इट इज ज़ीरो फ्लो रेट आउट। क्यों? The change of the input has to travel a distance that will take some time, and then you will have an effect on F naught initially. जैसे T0 पे आपके पास at T0 will be 0, but F at TD after some dead time you will have some flow rate over here. इसी तरह से अगर आपके पास एक टैंक है जिसमें आपने लिक्विड एफ आई डाला है, आपका बेस से फ्लोरेट एफ आउट आया है, अगर इसमें मैं इंक ऐड कर दूं, द इंक अफेक्ट विल नॉट बी हेयर एट एफ नॉट। आपको यहाँ पे ब्लू कलर नज़र नहीं आएगा, यू नॉट हैव ए ब्लू कलर ओवर हेयर। क्यों? बिकॉज इंक को अंदर जाना है, यहाँ पे मिक्स होना है और उसके बाद उसका इफेक्ट एफ नॉट पे आना चाहिए। वो जितना टाइम लगेगा डेट इज़ अ शॉर्ट इंटरवल, जो भी होगा वी कॉल इट द डेड टाइम। मीन्स अगर ग्राफिकली मैं बताऊँ आपको, इफ एफ आई चेंज हुआ है एट टी इज इक्वल टू 0, यहाँ से डाउन गया, तो आपको एफ नॉट की वैल्यू टी नॉट पे नीचे नज़र नहीं आएगी, एटलीस्ट आपके पास सम इंटरवल डेट टाइम गुजरेगा एंड देन यू विल सी इट्स इफेक्ट गोइंग डाउन। Ideally it should be like this, लेकिन because of the system inherent operation there is some dead time, तो आपके पास जो एफ नॉट है उसका इफेक्ट आपको इन रियल इस टाइम पे नज़र आएगा। Okay, let's do a next example, the example of the tabular heat exchanger. Tabular heat exchanger, ये आपको स्लाइड्स में भी मिल जाएंगी। Now apply, develop the mathematical model for it. हीट एक्सचेंजर किस तरह का है? You have डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, जिसमें आपके पास यहाँ से लिक्विड इन हो रहा है और यहाँ से लिक्विड आउट हो रहा है। जो स्टीम है डेट इज एंटरिंग फ्रॉम एज एन ऑपोजिट स्ट्रीम, ये आपके पास स्टीम एंटर हो रही है यहाँ से और लीविंग फ्रॉम दी टॉप। ये काउंटरवाइज हीट ट्रांसफर हो रही है। द हीट फ्रॉम दिस स्टीम इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू दिस लिक्विड, जो मकसद है आपके पास इसका। Now let's suppose we have a small control volume, इस पूरे को हम कहते हैं दिस इज आवर स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम। ये
इस सिस्टम का। दिस इज आवर स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम। दिस इज the length of this whole double pipe heat exchanger is L. Length is L. So at specific space, this is the value of Z. After that, अगर ये जो मैंने बनाया है that is delta Z change in space, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी Z प्लस डेल्टा Z। लेट्स सपोज इस पूरी लेंथ में से ये जो नंबर है वो है Z। 4 भी हो सकता है, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जो भी Z यहाँ पर है। और आफ्टर passing through this system, now it has a new position Z plus delta Z. चलो, the temperature of liquid at this position can be expressed as dZ, and the temperature at this position can be expressed by dZ plus d delta Z. Okay, we will do some assumptions. सबसे पहली assumption आपके पास steam is saturated, means कि इसका टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा। सेकेंड, the temperature of the liquid do not change readily। ये भी आप हीट ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, मीन्स अलॉन्ग दिस Z टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है जैसे जैसे वो स्टीम के साथ उसकी इंट्रैक्शन हो रही है। इस शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, टेबुलर हीट एक्सचेंजर में रेडिली नहीं आ रही। अच्छा, नाउ द फ्लो रेट ऑफ लिक्विड इन एंड आउट ऑफ द पाइप इज सेम। हमारे पास जो फ्लो रेट है वो यहाँ का और यहाँ का सेम है। इसका मतलब वी डू नॉट नीड, देयर इज नो accumulation ऑफ mass इन दिस पाइप, सो द ओनली इंटरेस्टेड फंडामेंटल क्वांटिटीज here is energy, or this energy will represent the temperature change. So let's do the derivation. अच्छा, आपने इसमें ये देखा है कि अब इसमें जो डिफरेंट चीज़ है वो है आपके पास डिस्टेंस अलॉन्ग विद द टाइम। सो इसकी इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी, accumulation of enthalpy, या आप कह लें एनर्जी, ड्यूरिंग द टाइम period delta T is equal to flow in of enthalpy during time period delta T minus flow out of enthalpy during delta T plus enthalpy or heat transferred from the steam, यहाँ पे आप एनर्जी भी लिख सकते हैं, heat energy from the steam to the liquid through valve during टाइम पीरियड डेल्टा टी। अब ये आप ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में या हीट ट्रांसफर में पहले से कर सकते हैं। एक्यूमुलेशन विल बी इक्वल टू द रो सी पी ए डेल्टा जेड टी एट टी प्लस डेल्टा टी माइनस
T at time t is equal to rho Cp velocity A into cross sectional area. This is basically the volumetric flow rate. Having a temperature T at Z during the time period delta T minus rho Cp V A T at Z plus delta Z plus Q into delta T onto area of heat transfer pi d delta Z. Now dividing whole equation by delta T and delta Z. Now we have an equation rho Cp T at T plus delta T minus T at delta T at temperature T Cp A over delta T will be equal to the negative rho Cp velocity to cross sectional area T at T plus delta Z minus T at delta Z over delta Z. delta T जो है वो कैंसिल हो गया प्लस पाई डी क्यू. Now by definition, change temperature at T plus delta T minus temperature at T or delta T is the definition of derivative, and this is a derivative. This is also the derivation definition, but this derivation is along with respect to the time, and this derivation is along with respect to the space delta H. So we can write it rho Cp. So now we will use here the partial derivative instead of exact derivative. Is equal to minus rho Cp Va partial T over partial Z plus pi d and q, where d is the diameter of the diameter of this pipe is basically the d. So you can here negative, you can put here rho Cp partial T over partial T is equal to plus rho Cp Va partial T over partial Z plus pi dq. We call this equation as an lumped variable equation. Why we call it lump? Or some people get distributed parameter equation, because in this the temperature is not only changing with the time, it is not transient, but it is also changing with the space. So this will be its final mathematical model. Now if you have an equation for Q, that is Q is equal to U T steam minus T, then you can simply insert in previous equation and you can end up with a final equation of d over dt plus rho Cp Va partial T over partial Z is equal to
पाई डी यू टी स्टीम माइनस टी। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि फाइनल इक्वेशन कौन सी होगी। अब ये भी फाइनल इक्वेशन है और ये भी फाइनल इक्वेशन है, तो आपने कौन सी ड्राइव करनी है? इसका आंसर सिंपली ये है, इफ़ आपके पास Q का रिलेशनशिप दिया हुआ है, मीन्स आपके पास एक एडिशनल इक्वेशन Q की है, देन यू हैव टू ऐड दैट इनटू द मैथमेटिकल मॉडल और फिर वो आपके पास फाइनल बनेगा। अगर आपके पास इफ़ नॉट गिवन, फिर जो प्रीवियसली इक्वेशन है ये वाली, यही आपकी फाइनल इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फ्लो रेट एफ आउट दिया हुआ है, दैट्स वाज एनी बीटा इंटू एच। अब इसका मतलब ये हुआ कि आउटलेट फ्लो रेट आपके पास हाइपर डिपेंड कर रहा है, ये इसकी एक एडिशनल इक्वेशन है। अगर ये आपके पास सवाल में गिवन है, आपको अपनी फाइनल मैथमेटिकल मॉडल इक्वेशन जो हमने भी पीछे ड्राइव की थी, ये वाली, इसमें आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है। इस प्रॉब्लम में चूंकि ये गिवन नहीं था तो आपने इंसर्ट नहीं किया और ये फाइनल मैथमेटिकल मॉडल इक्वेशन बन गई। लेकिन अगर आपके पास एडिशनल इक्वेशन आ जाए तो आपने उसको मैथमेटिकल मॉडल इक्वेशन में इंसर्ट करना है और फिर वो आपके पास फाइनल एडिशनल इक्वेशन बनेगी। Okay. अब हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लाइक वी आर डूइंग द डिस्टिलेशन कॉलम मैथमेटिकल मॉडल इक्वेशन। डिस्टिलेशन कॉलम का क्या मकसद है कि प्रोडक्ट्स को प्योरीफाई करना, बॉटम प्रोडक्ट लेना, टॉप प्रोडक्ट लेना, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी नंबर ऑफ ट्रेज हैं। तो आपको पता है इसमें डिफरेंट ट्रेज होती हैं, जिसमें एक होती है आपके पास फीड ट्रे, एक आपके पास होती है बॉटम ट्रे, एक आपके पास होती है टॉप ट्रे, और एक आपके पास होती है इंटरमीडिएट ट्रेस। फीड और बॉटम के दरमियान में इंटरमीडिएट ट्रेस होंगी, फीड और टॉप के दरमियान में इंटरमीडिएट ट्रेस होंगी। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक बैलेंस लगा के दूंगी, बाकी आप खुद ही देख लीजिएगा किस तरह से लगाना है। मैं यहाँ पे जो आपको लगा के देती हूँ वो लगा के देती हूँ बेसिकली फीड पे। अब सबसे पहले फीड ट्रे पे, अच्छा फीड ट्रे पे हमने कौन सा बैलेंस लगाना है? मैस, एनर्जी, मोमेंटम तो इसमें होता नहीं है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसमें जो रेट ऑफ एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम ये एनर्जी को निग्लिजिबल कर देते हैं। तो हमारे पास जो ओनली बैलेंस अप्लाइड ऑन फीड ट्रे इज़ द मैस बैलेंस। पहले देख लेते हैं कि फीड ट्रे की ब्लॉक डायग्राम कैसे होती है, या आप कह लें कि उसकी प्रोसेस डायग्राम कैसे बनती है। फॉर एग्जांपल ये वो डिस्टिलेशन कॉलम का पार्ट है जिसमें आपके पास फीड एंटर हो रही है। जो फीड एंटर हो रही है उसका फ्लो रेट एफ है और कंसंट्रेशन सी एफ है। एफ जो शो कर रहा है सबस्ट्रेट कि ये फीड के लिए। अच्छा, ये आपके पास फीड ट्रे है एफ, इसको मैं कह देती हूँ दिस इज द एफ। तो जो इससे ऊपर की ट्रे होगी वो क्या बन जाएगी? एफ
F+1 और जो इससे नीचे की ट्रे होगी वो क्या बन जाएगी, F-1। तो यहाँ पे जो फ्लो रेट होगा, जो भी लिक्विड इसके ऊपर होगा उसका जो फ्लो रेट होगा वो F+1 पे होगा, और यहाँ पे जो भी लिक्विड नीचे जा रहा होगा वो F फ्लो रेट आउट पे जा रहा होगा। जो वेपर्स आ रहे होंगे वो आपके पास, लेट्स सपोज अब आपके पास ये तो आपके पास आ गया। अब हर ट्रे में से लिक्विड जो है वो नीचे जा रहा होगा। लेट्स सपोज हम लिक्विड फ्लो रेट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय L। L इज आवर लिक्विड फ्लो रेट फ्रॉम ट्रे। अगर फीड की जा रहा है देन इट विल बी द लिक्विड फ्लो रेट फ्रॉम फीड ट्रे हो जाएगा। अगर ये फीड के ऊपर वाली ट्रे से आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, द लिक्विड फ्रॉम द ट्रे अबव फीड। इसी तरह जो वेपर्स हैं, वेपर्स को हम कर देते हैं द वेपर्स फ्लो रेट लीविंग फ्रॉम ट्रे। तो इसी तरह VF होगा तो जो फीड से लीव कर रहे हैं, और जो VF- होंगे वो उस फीड ट्रे में से जो फीड से एक नीचे है, VF-1। हमारा सिस्टम क्या है, दिस इज आवर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से जो वेपर लिक्विड नीचे आ रहा है डेट इज LF+1। यहाँ से जो इसके लिक्विड फ्लो नीचे आ रहा है डेट इज LF, ठीक है। अब mass flow rate क्या होगा, the mass balance on the feed tray will be equal to DMF, means the mass accumulated on the feed tray d over dt is equal to MF plus LF plus 1 plus VF minus 1 minus LF minus VF। इसको फिर समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, जो भी इन चीज़ होगी डैट विल बी पॉजिटिव, जो भी आउट होगा डैट विल बी नेगेटिव। अब इस ट्रे में आपके पास एंटर क्या हो रहा है, लिक्विड एंटर हो रहा है फ्रॉम दी टॉप, लिक्विड एंटर हो रहा है एज ए फीड, और लिक्विड लीव कर रहा है फ्रॉम दी बॉटम। ये तो हो गया लिक्विड। तो इसको देख लेते हैं लिक्विड फ्लो रेट को। यहाँ से फीड ट्रे एंटर हो रहा है पॉजिटिव, अबव दी फीड ट्रे लिक्विड एंटर हो रहा है पॉजिटिव, और जो लीव कर रहा है वो यहाँ पे नेगेटिव। नाउ लुक एट दी वेपर फ्लो रेट। वेपर फ्लो रेट आपके पास टॉप ट्रे फीड ट्रे से लीव कर रहा है VF, इसके अलावा नीचे से एंटर हो रहा है VF-1। ये देख लें यहाँ पे पॉजिटिव विद VF-1 और -F। तो दिस इज द मास बैलेंस ऑन द फीड ट्रे। बट इसमें आपके पास कंपोनेंट मास बैलेंस भी अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि अभी इसमें जो कंपोनेंट मास बैलेंस में अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट मास बैलेंस। कंपोनेंट मास बैलेंस किसका? वेपर्स का और लिक्विड्स का, और टॉप और बॉटम की कंसंट्रेशन का। तो लेट्स सपोज इसमें अगर दो कंपोनेंट है A एंड B, तो हम A कंपोनेंट के ऊपर लगाएं बैलेंस, तो क्या होगा, इसी इक्वेशन को हम लोगों ने कंपोनेंट की फॉर्म में लिख देना है। किस तरह से? बाय मल्टीप्लाइंग with the concentration of component A at the respective place.
अगर वो फीड की है तो फीड की प्लेस पे उसकी कंपोजिशन आ जाएगी, अगर वो फीड फ्लोरेट है तो उसकी कंपोजिशन आ जाएगी, अगर लिक्विड फ्लोरेट है उसकी कंपोजिशन आ जाएगी. सो वी कैन राइट हियर फॉर कंपोनेंट ए it will be D M F Z F over dt is equal to फीड फ्लोरेट और उसकी कंपोजिशन जो CF है प्लस लिक्विड फ्लोरेट जो कि फीड ट्रे के ऊपर से आ रहा है और उस ट्रे पे क्या कंपोजिशन है वो हम एक्सप्रेस कर देंगे XF+1 से प्लस VF-1 और उसकी कंपोजिशन जाहिर है ये वेपर्स है तो वेपर्स को V से हम Y से कंसिडर करेंगे VF-1 माइनस लिक्विड LF-XF और ये XF कंपोजिशन है कंपोनेंट A की इस लिक्विड ट्रे में माइनस V फीड और अगेन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा YF. ये इस अपने पर्टिकुलर जहाँ जिस पोजीशन के वेपर्स हैं उसी पोजीशन के आपके पास कंपोजिशंस आ जाएंगी VF. ओके, नाउ दीज टू आर दी बेसिक्स मैथमेटिकल मॉडल इक्वेशंस फॉर वन ट्रे. इसी तरह आप बाकी ट्रेस का भी खुद कर सकते हैं. आपको कोई मसला या परेशानी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि कर सकें. यहीं तक आज का लेक्चर है. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेशन. याद रखें पेपर में आपके पास बहुत ही सिंपल सिस्टम्स के मैथमेटिकल मॉडल इक्वेशंस आएंगे जस्ट लाइक लिक्विड स्टोरेज और हीटर. ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप कर सकें. जैसे अगर डिस्टिलेशन कॉलम है तो इसकी किसी एक ट्रे के ऊपर बैलेंस लगाना आ जाएगा, सारे पे नहीं. दूसरी बात आपने ये याद रखनी है जो आपके पास वेरिएबल्स के नाम हैं वो आपने वही नाम रखने हैं जो आपको एक किसी न किसी पेपर में गिवन हो. अगर आपके पास Q जो है वो मैस वॉल्मेटिक फ्लोरेट है तो आपने इसको वॉल्मेटिक फ्लोरेट ही कंसिडर करना है. अगर आपके पास Fi है तो फिर आपने इसको वॉल्मेटिक फ्लोरेट कंसिडर करना है. अगर कुछ अजम्पशंस नहीं दी गई हुई तो आप पेपर में उस अजम्पशंस को मेंशन करके तो उस हिसाब से अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी टाइम. आपके पास टाइम कितना है. चलें अब गो थ्रू होने के लिए प्रेजेंटेशंस को देख लेते हैं जो स्लाइड्स को. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास और एग्जांपल्स के साथ आती हूँ. अल्लाह हाफिज़.